Well, first up on the bulletin, however, let's tell you how BJP's priority cannot get any bigger than this. After Hindu seer Govind Dev Giri Maharaj's appeal on freeing 3 of the temples, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath yesterday made it official. He has declared that the next battleground after Kashi and Ayodhya is going to be that of Mathura. Demanding a temple for Krishna there, Yogi Adityanath has claimed that centuries of injustice against Hindus has been done. Aiming for a clean sweep in all the 80 seats, Yogi Adityanath has declared that 3 temples pitch right ahead of the critical 2024 polls. In fact, he's reminded the House about the decades of injustice which have been meted out towards Hindus, saying that the Sanatanis are demanding only 3 temples, which he said were the rights of the majority. Furthermore, the Chief Minister didn't hold back. He launched a double-barreled attack against Akhilesh Yadav's Samajwadi Party. He accused the party of neglecting Ayodhya and delaying the Ram Mandir construction. Listen in. Well, we are going to get you all the details which are going to be coming up right here on Times Now. But for the time being, let's get you the soundbite which has been made. But remember, this is not the first time this kind of a demand has been made. In the past also, there have been calls which have been coming in that let the Hindu side build 3 temples after Ayodhya, after Kashi. Now let Mathura also be what is being called as liberated and given back to the Hindus and restored their right to pray. This is what Chief Minister Yogi Adityanath had to say. महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए। वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं? Well, meanwhile, in a fiery response to Yogi Adityanath's statement, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav challenged the notion of Ram Rajya without Samajwad. He has said that Ram Rajya needs socialism for equality. Listen in. देखिए, ये बात कई बार कह चुके हैं, जो समाजवाद है वही राम राज्य है। और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और राम राज का रास्ता खुल जाएगा।
Well, with that, some big breaking news which is coming in after Yogi's speech. Samajwadi SP of fear mongers rather. In fact, this time around, the Samajwadi Party has said that Taj Mahal, Qutub Minar, as well as others are now going to be very quickly reclaimed by this Hindutva wave as well. Listen into the fear mongering and the incitement. हमें पहले से इस बात का अंदाज है और हमने ये बात कही भी है कि बाबरी मस्जिद का मसला तय करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक फैसला करा दिया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मसला ख़त्म हुआ। अब मथुरा है, ज्ञानवापी है, उसके बाद ताजमहल भी होगा, दिल्ली की जामा मस्जिद भी होगी, कुतुब मीनार भी होगा, 3000 मस्जिदें भी होंगी। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ जाके ठहरेगा? देश हित में क्या है, हम सबको सोचना चाहिए। Meanwhile, the BJP has hit back at the Samajwadi Party, saying that there is proof of the temple being demolished to build temples as well. Listen. जहाँ तक मंदिरों की बात है, बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था और शायद वो तोड़ने वाले भूल गए कि कभी हमारा यहाँ से जाना भी हो सकता है, तो सबूत छोड़ गए। और भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत का न्यायपालिका सबूत के आधार पर चलती है। वो तीनों जगह हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं, चाहे वो खम्भों में देख लीजिए, स्वस्तिक देख लीजिए, शंख देख लीजिए, कोई भी प्रतीक देख लीजिए, किसी भी मस्जिद में नहीं होते हैं। तो हमें तो उम्मीद है, हमने तो इसके लिए संघर्ष किया है कि भाई हमें मिलना चाहिए। Well, in fact, let me go across to Vinod Mishra, who's joining us live with all the details on this. Vinod, जैसा कि हम देख रहे हैं कि massive war of words हो गया है, but what is very disturbing, क्योंकि समाजवादी party is now leaping in and fear mongering over this call that all three of them should be returned to the Hindus. Now समाजवादी party is saying कि यहाँ पर नहीं, अब तो आगरा में ताजमहल भी मांगेंगे, कुतुब मीनार भी मांगेंगे, and that kind of needless incitement is happening. लुक, जिस तरीके से कल सदन में सीएम ने जो बातें कही, बहुत क्लियर कट मैसेज था, बहुत क्लियर था कि बीजेपी जो एजेंडा था बीजेपी का अयोध्या, मथुरा और काशी, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। और शायद यही बड़ी वजह है कि सीएम कहते हैं कि हम सिर्फ 3 अपने धाम जो है मांगते हैं। और ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे भगवानों ने अवतरण लिया, जहाँ वो पैदा हुए। अयोध्या में भगवान श्री राम पैदा हुए, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और जो काशी है वो भगवान शिव शंकर की नगरी है। लिहाजा हम उन 3 अपनी धरोहरों को मानते हैं। वो कहते हैं कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये देश के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा है, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी, वो पूरे देश के गौरव का था। और ये गौरव जब एक बहुसंख्यक समाज 500 सालों से किसी चीज के लिए संघर्ष करता है, तब वो अगर मिलता है तो किस तरह से गौरव स्थापित होता है, ये बात उसकी है। ये दुनिया देख रही है कि एक देश ऐसा है भारत, जहां पे बहुसंख्यक समाज जो है अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़ता है, और वो नहीं देते हैं। जिस तरह से कौरवों ने 5 गांव नहीं दिया, उसके बाद पूरा कौरव समाप्त हो गए। अगर हम 3 धाम अपने मांग रहे हैं तो उसे हमें देने में क्या हर्ज है? अब पूरा जो फोकस है बीजेपी का, वो काशी और मथुरा को लेकर है। ये बहुत क्लियर कट है, और क्योंकि बीजेपी का यही एजेंडा है, और 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी। अब सवाल समाजवादी पार्टी जैसे तमाम जो विपक्षी अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके लिए है कि वो इसे काउंटर कैसे करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवाद के जरिए राम राज्य आएगा, पार्टी के बाकी नेताओं का अलग अलग स्टेटमेंट्स है। तो बेसिकली जो अपोजिशन है वो कंफ्यूज है कि आखिर अयोध्या, मथुरा और काशी के इस एजेंडे को टारगेट और इसको अपोज कैसे करेंगे, इसको काउंटर कैसे करेंगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तमाम जो पार्टी के लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम हमारे आराध्य हैं, हम शंकर को पूजा करते हैं। लेकिन अब ये मसले चूंकि कोर्ट
में है और कोर्ट फैसला करेगा। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उस पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, लिहाजा में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए इस बात को लेकर। और अयोध्या, मथुरा और काशी के भी फैसले होंगे, उसके बाद से जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको सबको मानना चाहिए। जी बिल्कुल, a lot of this is sub judice. However, these bids to polarize have been coming in, both of them accusing each other of appeasement politics. Meanwhile, let's also tell you how Muslim leaders as well as Muslim bodies have been calling out the Yogi government. They have slammed his bulldozer model, while the others have questioned what really happened to the Sabka Saath pitch of the BJP. Listen in. देखिए, योगी जी जो है बुलडोजर चलाना जानते हैं, बुलडोजर मिनिस्टर है और होम मिनिस्ट्री नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के दौर में इतने बड़े आदमी के ऊपर हम लोग कमेंट देंगे और पता ही नहीं चला वो क्या बोल रहे। गांव देहात से आते हैं और योगी जी जिंदगी में कोई बात ठीक कर ही नहीं सकेंगे, जो भी करेंगे वो उल्टा ही करेंगे। ये मुख्यमंत्री के जुबान से शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से मजहबी बातें करें या पार्टी बने। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए वो बहैसियत मठ के एक पुजारी की हैसियत से अगर ये बयान दें तो ये उनकी जुबान से शोभा देता है, जेब देता है। वो मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं और पूरी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर शहरी के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने पार्टी बन करके, फरीक बन करके इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए।